You started as a waiter, Right. and you started by doing so many different jobs. From there, you ended up becoming this like a really successful star today. Okay. Do you think आज के ज़माने में कोई एक waiter इतना बड़ा actor बन सकता है? ऐसे ही बनते हैं. Everybody, ask so many actors, ask Nawaz, ask Pankaj. I'm sure they'll have similar stories to tell. But today, do you think it's possible? Why not? Because it's not So very. why? Tell me why do you doubt that? Why can't I heard that day a cricketer who's doing very well for himself was selling vada pav. The lot of them now. Yeah. आजकल के ज़माने में there's a land now. India has become the land of opportunity. यार, if you have a dream, you can fulfill it. Who is saying कि नहीं अभी आप वेटर है तो मतलब आपका नंबर नहीं आएगा सर? ऐसा तो हो ही नहीं सकता. उल्टा है, because you'll be far more determined. आप comfort zone में नहीं है. Comfort zone is not a very good thing. So people who don't have to pay bills are probably, I'm not saying all, are slightly, you have to make sure be on the front foot a little more. Agreed. Like when you're uncomfortable, you have higher chances of making it big. Correct. You have to. You got no choice. क्योंकि सो ही नहीं Go पाओगे down. ना. Yeah, you got no choice. करना ही पड़ेगा अभी तो. हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे. इससे मेरा एक क्वेश्चन आ रहा था about you losing your father at a very early age. I never saw him. No early age. मेरे जन्म के पहले ही उनकी जन्म से कर दिया. पहले की? जन्म से पहले. Did you feel No. How can I feel? कभी मिसिंग नहीं लगा? मुझे मालूम ही नहीं. तो जो मैंने आज तक महसूस ही नहीं किया तो उसका लॉस कैसे महसूस करेंगे? मुझे पता ही नहीं कि फादर क्या होता है. पर ऐसे दूसरे बच्चे या दूसरे लोग सोसाइटी में पीपल वर नॉट मेकिंग फन या चिढ़ाते नहीं होंगे या कभी तो Children can be cruel, by the way. They can. But I don't know. I had other complications. और क्या अगर complications? So I was a nervous child. डरा हुआ रहता था हमेशा. प्रोटेक्टेड था ना घर पे. फादर नहीं होने पे ज़्यादा लोग घर पे ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते थे और वो भी वही कंफर्ट जोन है. टफनेस नहीं थी मेरे में. टफ तो बाद में बन गया. स्टैमर करता था, डरता था. मैं जब स्कूल में जाता तो ऐसे मेरी जो कंफर्ट मतलब प्रोटेक्शन का शेल जो था मेरी जो मुझे सिसिलिया करके जो मुझे संभालती थी, मुझे स्कूल लेके जाती थी, वो भी एक माँ जैसी थी. तो मैं टफ नहीं था. सो आई वॉज ऑलवेज वेरी नर्वस. सो आई हैड लॉट ऑफ माई स्कूल वॉज अ ग्रेट स्कूल, सेंट मैरी स्कूल. हाँ, बट आई वॉज ऑलवेज स्कैर्ड. फिर मैं 5th स्टैंडर्ड के बाद आई बिकेम अ नॉटी बॉय to cover up for those lost years. And then उसको compensate करने के लिए naughty boy मतलब I didn't get it. मतलब मैं फिर शरारतें करने लगा. Getting into trouble, I enjoyed getting into trouble. लेकिन फिर भी मैं टीचर्स पैट रहता था हमेशा. जितनी भी मस्ती करूँ ना टीचर्स used to like me a lot. Okay. For some reason. Especially the female teachers. They used to really, they was like a mothering. So you were a mama's boy, ना? So Yeah, true. And you अभी जो आपकी नई मूवी आ रही है उसमें भी you've played a father. Right. And there's a son. And so do you think it was difficult for you to play that role? Maybe some parts of you reminded you of your dad, and then I'm saying it again. I had I don't have memory of it because it never happened. So I'm not reminded of anything in that aspect. Zero. I'm saying it again. Then nothing about my father's existence can be of any presence because there was no presence. So what am I missing? I have no idea. True. I just feel there is a void. I don't know if it really means anything.
I'm not trying to fill it. I'm not. And if I am not aware of it. Yeah, fair. But then that also means that your mom must have played like really, really strong, important role in your life. Sure. Because if even today, like after so many years, living so many things and going through so many experiences, you've never felt a void which you're not aware of. So it's such an amazing thing. So tell me something about your mother. Like what did she do? Like what's the best thing about her? So I can give you a little history of my mother. She was widowed when she was very young, right? Must have been 30, 29, 30. She had 3 girls before me. Ting, ting, ting. And then मैं तो आया ही नहीं था. फिर उसके बाद मेरे पिताजी जब गुजर गए तब लंबी हॉस्पिटलाइजेशन थी, हॉस्पिटल्स के बिल्स, और हमारी जो दुकान थी वो इट सफर्ड अ लॉट क्योंकि उनका प्रेजेंस नहीं था. तो वहाँ पे क्या हो रहा था उस वक्त, उनकी बीमारी के दौरान हमें मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा था दुकान में. दुकान थी, हम लोग वेफर बनाते थे. बेकरी? बेकरी नहीं है वो, मतलब बेकरीज वेयर यू हैव अ ओवन, ये तो तलते थे हम. ओके. तो जब उनका देहांत हो गया उसके बाद दुकान में तो कर्जा था बहुत सारा. तो मेरी माँ क्या सोची होगी कि मैं कैसे करूंगी ये. तो बोला चलो ठीक है, पहले हम कर्जे का मतलब सेटल कर लेते, उसके बाद आई वॉन्ट टू प्रॉस्पर, आई वॉन्ट टू गिव माई चिल्ड्रन एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश करूंगी. घूमेंगे, गाड़ी में जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे. और जब हम लोग गाड़ी में पिक्चर देखने जाएंगे तो कोई उंगली उठा के नहीं बोल सकते कि ये लोग देखो एंजॉय कर रहे हमारे पैसों पे. She was very clear about that. That thought must have given her a lot of strength. So she became a strong lady. She was not a strong lady. She became a strong lady because of comfort zone नहीं था, जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था आपसे. So that was my mother. That explains who she was. दूसरी बात, मेरी माँ हमेशा वो समझ गई थी कि मैं ऐसे सब्जेक्ट्स, साइंस हो या मैथ्स हो या ऐसे सब्जेक्ट्स में मुझे कोई समझ ही नहीं आ रहा है. उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है उस सब्जेक्ट्स में. तो ज़्यादा कोशिश नहीं कि नहीं क्यों नहीं तुम्हारा मैथ्स क्यों नहीं, व्हाई इज अ मैथ्स बैड, डजंट मैटर. तो मुझे फिल्म देखने के लिए बहुत इनकरेज करती थी और बहुत फिल्म्स डिस्कस करती थी. Who taught her how to like films was my father. So I got to know, if at all, I got to know my father through his film taste, film list. You know, ये हम लोग पहले बाहर गए थे, फर्स्ट टाइम मिले थे, तो ये पिक्चर देखा, फिर ये पिक्चर देखा, फिर ये पिक्चर उनकी आखिरी फिल्म थी गुजरने से पहले, बीमार होने से पहले. तो मैं सब वो पिक्चर है जो 40s और 50s में देख चुके थे ये लोग, मामी डैडी, मैं जाके जब रीरन आते थे मैं जाके देखता था. एंड शी इनकरेज मी, देखो इसमें ये सीन ऐसे होता है, ये सीन वैसे होता है. माई फादर वॉज द एक्चुअल सिनेफाइल. और ये सब मुझे आज महसूस हो रहा है इंटरव्यूज देते वक्त. But it's beautiful. I became so interested in cinema through my mother, who was interested in cinema through my father. So indirectly through. I'll give you a very simple example. Yeah, I was hearing one interview of Shah Rukh Khan, and he said कि 15 साल की उम्र में उनको ड्राइविंग आ गई थी. उनको नहीं पता था कि ड्राइविंग आ गई, because he was driving his father to the hospital. Right? So it was just a skill which he didn't even know कि उनको सीखनी पड़ गई या आ गई. But I can relate to that.
I can relate to that. My mother used to have a lot of anxiety attacks. उनको ऐसा लगता था कि I am dying. रात को I'm dying. सुबह 4 बजे उठ के she would be having anxiety attack. मैं भी दुकान के problems, 11 साल की उम्र में भी मैं चल के मतलब 2-2.5-3 किलोमीटर अकेले चल के जाके, हमारे पास फ़ोन नहीं था उस ज़माने में, डॉक्टर जहांगीर को लेके आता था. As a small kid, and nobody saying cross the road carefully. You have to get the doctor. I need to know my blood pressure is very high. कौन जाएगा? मैं ही जाता था. और I relate to that very much. So what are we learning? We're just being a little tougher about certain things. मैं कभी सोचता था नहीं कि रोड क्रॉस करने को मतलब we don't allow our children to cross the road on their own now. We don't. Yeah. You know, you दुकान पे बैठता था, छोटा था तब से मैं दुकान पे बैठता. कौन सी एज से? अपनी मतलब since I was 11 years old I may be sitting. हाँ, गले बैठता था, पैकेट सील करता था, वजन करके छोटे छोटे पैकेट जो सिनेमा हॉल में जाते थे, वेफर भर के. भूखा मत बनाओ, मतलब ऐसे वेफर डालेंगे तो भूखा बनता है. मतलब पाउडर वेफर या बहुत क्रिस्प होता ना, तो एक तकनीक होता है ऐसे उठाने में, ऐसे वो करके पैकेट बनाता था, वजन करता था, गले पे कभी बैठता था. आई थिंक इट्स गुड. ऑल ऑफ दैट एक्चुअली प्रिपेयर हेल्प्स. एंड देन जब आप घर में थे, गले पे बैठते थे, तो फिर एक्टिंग कैसे हो गई? वेरी डिफरेंट वर्ल्ड यू केम फ्रॉम. बट आई हैड अ डिफरेंट टैलेंट. Just because you come from a different world does not mean that only that talent will come to you. So, I was very good at imitations when I was young. Okay. लोग कैसे चलते थे, लोग कैसे बात करते, उनकी आवाज़ की टेक्सचर निकालता था. तो and it was quite fascinating. It used to be pretty accurate. ये कैसे चल के दिखाओ. Not just movie stars, but even people from real life. I used to do imitations very well. I also like going on stage. I like बचपन से. हाँ. क्या होता है स्टेज पे, once you overcome the fear of stage, which I actually don't remember having. मैं स्टेज पे जाने के लिए कभी fear ही नहीं था. Fear, I don't know. Okay. मतलब मुझे याद नहीं. बट स्टेज पे जब मैं अपना शुरू हो जाता तो मैं टाइगर रहता था. मैं रियल लाइफ में टाइगर नहीं था, स्टेज पे टाइगर था. तो मुझे कैसे भी करके स्टेज पे जाना बहुत अच्छा लगता था. एंड इट वाज एन एस्केप, ब्यूटीफुल एस्केप. और वहाँ पे यू आर गेटिंग अप्रिसिएशन ऑल्सो. मैथ्स और साइंस में अप्रिसिएशन नहीं मिलता था, स्टेज पे अप्रिसिएशन मिलता था. तो मैं कैसे भी करके, मैं छोटा था तब से प्ले लिखता था. So you were just lured towards that. Yeah. कि appreciation भी मिल रहा है. तो ऐसे नहीं कि मेरे घर में कोई एक्टर नहीं है तो मैं एक्टिंग कैसे सीखूं. इट्स अ गॉड गिवन गिफ्ट. किसी की नकल मतलब इमिटेशन करना मतलब इट्स अ गिफ्ट. यू डोंट हैव टू गो टू एक्टिंग स्कूल फॉर दैट. यू डोंट हैव टू बी ट्रेन्ड फॉर दैट. बट आई वॉज वेरी वेरी. और दूसरी बात, मैं सिनेमा रोज जाता था, हर रोज थिएटर में जाता था. घर के सामने थिएटर था, तो मतलब वही मेरा होमवर्क था. डेली मूवी देखते थे? डेली. बेस्ट उस टाइम मूवी कौन सी लगती थी? मैं सब देखता था, लेकिन मैं बहुत रोता था उस पिक्चर में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लगती थी. It was depressing for me. And I used to cry as a little child, you know. कौन सी? मदर इंडिया जब भी रिलीज होती जाके देखता. प्यासा जाके देखता था मैं. प्यासा, मेरी माँ बहुत बेचती थी प्यासा देखने में. साहिब बेबी और गुलाम. तो सेम मूवी बार बार देखता था. और क्या करेंगे, सब देख लिए, फिर क्या करेंगे, फिर रिपीट करना. फिर 2 आंखें 12 हाथ. टीवी तो बहुत बाद में आया ना. 2 आंखें 12 हाथ. फिर इंग्लिश फिल्म्स, हिस्टोरिकल फिल्म्स, बिब्लिकल फिल्म्स, सब ड्रामा, साइको, अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्में.
सब देखता था. तो ऐसे फिर रोते क्यों थे मदर इंडिया में जब सारी मूवीज देखते थे तो? Because the Rona is making you, it's touching some part of you which you're feeling an emotion. It doesn't mean मुझे रोना नहीं, ऐसे नहीं. मैं देखता था and I was to get enveloped by that emotion. To see that woman हल अपने कंधे पे लगा के हल चलाती थी, नरगिस जी. मतलब you see the power of a woman who is now mother of these kids and she's, maybe I saw my mother in Mother India. We call my mom Mother Irani, just by the way. Mother Irani. दूसरी कौन सी हिंदी पिक्चर में तो मोगले आजम, फिर 70s में बहुत सारे पिक्चर्स लगातार देखे हमने. देव साहब के पिक्चर, ऋषिकेश मुखर्जी की सारी पिक्चर्स, आनंद. बहुत रोता था आनंद में, लेकिन आनंद वाज अपलिफ्टिंग फिल्म. फिर इंग्लिश पिक्चर्स में 10 कमांडमेंट्स, बेन हर. कैसी आज देखो 10 कमांडमेंट्स कोई बना के दिखाओ. Okay, let's come to your movies now. Okay. आपने, I'll tell you something that I love about you, क्योंकि फैंस तो हर कोई बोलता होगा आपको आके कि oh we are a fan, this and that. You know, you have a, what's the word, ऐसे समझा कैसे, finesse. Okay. Like ऐसे लगता है कि you're just very charming. Like you have that charisma in every character, in real life, in every speech, every podcast interview I see. And I love that a lot. Like the moment somebody looks at you, like, yeah, it's like, kaise? Like it's just so easygoing. And you have that aura around you. So I love that. And that's reflected in every character. Okay, thank you. So there are like few iconic characters जो आपने play करे हैं, which I'm sure बहुत सारे हैं ऐसे. और उनमें से one of them, obviously it has to come, is 3 Idiots, right? Virus. Okay. तो वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली वो कैरेक्टर प्ले करने की? कैसे वो प्ले किया? कि कोई देखा था ऐसा प्रोफेसर? क्या किया उसमें? I went to Raju with the idea. Raju is very, very methodical in his writing process. I went with him and I said, I think we should shoot him ambidextrous. दो हाथ से. अच्छा. Okay. So Raju, वो मैं लेट गया ये आइडिया के साथ उसके. So that time he was quite closed. मुझे नहीं, I got shoot कैमरा. बोला नहीं, एम्बिडेक्स्ट्रस बनाओ, दो हाथ से लिखता बोर्ड पे, 2 हाथ से पेन. जीनियस है ये आदमी. लेकिन क्यों? ये शॉट लेने के लिए मुझे एक्स्ट्रा 1 घंटे की शूटिंग करनी पड़ेगी. आई डोंट हैव टाइम. आई सेड राजू, लेट्स डू इट. फिर बोला चलो लेट्स स्टार्ट अ सीन लाइक दिस. वो लिख रहा है, फिर वो बोर्ड पे लिख रहा है. When I explained to him, either you convince or get convinced, one of the two. He said, it's useless. I'll keep coming with ideas and you will convince me and I will back off. I said, if we had made him just a straight up administrator, and no offense to administrators, it's fine. You come up with it. मेरा नंबर कॉलेज 75th था, फिर 35th हो गया, फिर सेकंड आया, और नाउ इन द टॉप 3 नंबर्स. वो बोलते रहता हूँ. बट वो अगर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर होता तो ठीक है, लेकिन वो जीनियस है और वो जीनियस का इस्तेमाल नहीं किया उसने. दैट्स हिज ट्रेजेडी. वो जीनियस है, बहुत कुछ कर सकता था. एंड ही सेड, ओह ओके, लेट्स डू. सो राजू is such a clever man that he immediately said, okay, he got it done. But the other externals, we came up with a lot of, I was anti doing the role only. मुझे ये रोल नहीं करना है, because मुन्ना भाई में भी सेम है रोल. उसकी बेटी वो अपने जो मेरा स्वान एनिमी के साथ, she's in love with my swan enemy. Number 1, he's a principal of a college. He's cranky. इसी ने करेंगे. I was very fond. I've always been fond of Irfan. तो इरफान को ना, बमन, let's do it now.
Then we went for a retreat. हम लोग कहीं चले गए और वो डिस्कस करने लगे. बोला we'll give him some nice quirk. We'll give him this lisp, which I threw at him. So think of your professors. Come up. So I came up with this thing. That's very interesting. Camera निकाला. राजू हमेशा वो पुराना कैमरा निकालता था, पुराना. I said, this is very nice. A woman is very charming. It's very nice. It's beautiful. And then the externals came later. Nice. So you thought just कि मैं इस कैरेक्टर में एक्स्ट्रा कैसे डालूं instead of trying to find out inspiration from different places. तो इंस्पिरेशन भी पिकिंग अप ऑल अराउंड अस. हम ऑब्जर्व करते रहते, अच्छा, देखते रहते हैं. अभी कोई नेक्स्ट पिक्चर में शायद मैं आपके जैसे बैठ के बात करूंगा, शायद तो you'll know I borrowed from you. I would love to see that whenever it happens. I could retire very peacefully after that. ना. But you talked about then MBBS के बारे में बात करी आपने, मुन्ना भाई के बारे में. तो उसमें भी आप कैरेक्टर थे. उस कैरेक्टर में द बेस्ट पार्ट वाज कि आप फनी और सीरियस सेम टाइम पे हो. लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल? लाइक कि वो कैसे प्ले किया? तो मुझे बहुत नफरत थी उस लाफ्टर थेरेपी. वो लाइट पुरानी पिक्चर आई थी जिसमें साउथ के विलेन थे, उसको गोली मारे थे लास्ट में. तो गोली मारने के बाद दिखता है उसको तो हंसा था. मुझे वो याद आने लगे. बोला यार दिस लुकिंग वेरी कैरिकेचर. तो मैंने राजू को बोला मुझसे नहीं होगा यार ये. राजू इज अ मास्टर एट ऑल दिस. वो सब समझते एक आदमी का साइकोलॉजी क्या है, उसको डर क्या है. तो मैं just doesn't work यार राजू. what is this laughter यार. वो बीच बीच में हंस क्यों रहा है. तो मैं बोला पहले शेड में बोला मुझे ये नहीं करना. मतलब ठीक है मत कर. बोला अच्छा रियली. तो मैं एक्चुअली बैकफुट पे चले गया. नहीं करूँ. नहीं, इफ यू डोंट फील कॉन्फिडेंट डोंट डू इट. अच्छा ही इज प्लेइंग विद माई साइकोलॉजी. सो मैंने किया, सेट पे गया सेकेंड दिन की. तो एक काम कर, 2 टेक कर. एक टेक करेंगे लाफ्टर के साथ, एक टेक करेंगे लाफ्टर के बिना. ठीक है. बोला हम लोग रिहर्स करेंगे लाफ्टर. Okay. तो मैं ऑफिस में गया और सुबह से शाम तक मैं तरह तरह के लाफ्टर करने लगा. लाफ लाउड, हा हा हा, लाफ लाइक दिस, लाफ ही. इवन दैट इज एक्सटर्नल. व्हाई एम आई लाफिंग? Why am I laughing and is it working? We find that out. Okay. I'm laughing because I have BP. And I'm only laughing when I'm under stress. So, the thing is, he's laughing because he's crying. Oh. आपने अभी क्या बोला है, वो हंसता भी है और सीरियस भी रहता है. सीरियस हो बिकॉज ही इज ट्राइंग टू ओवरकम हिज बीपी. सो आई आस्क फॉर अ पिल्स. पिल्स खत्म हो गया. पिल्स ट्राई नहीं हो रहा है यार. सो देन इट स्टार्टेड वर्किंग. नॉट जस्ट दैट डजंट वर्क. इट इज विदाउट मकसद का हंसना बिकॉज इज वैसे ही है. So you found reason. Wow. And that reason आपको ऐसे usually handed like they give you? No, it You doesn't. discover through You, all of of course. this. Always. So सारे characters के reason कि क्या through वो कब discussion, क्या कर- right? और राजू का तो दिमाग खा जाता हूँ ना मैं. We go, we sit for hours and we talk. He is very patient in that sense. कैसे करेंगे, कैसे, क्या लगता है ना. राजू is very funny man, by the way. Okay. आपको लगेगा नहीं कि वो इतना, but he is an extremely funny person. He'll start laughing before but he is very serious when it comes to creating things. So you can spend a lot of time And talking. he's a genius. Hey, he's amazing. Okay. I always ask this to almost everybody कि so in मैं हूं ना आपने काम किया शाहरुख खान के साथ. Why do you think he's the biggest superstar today? He's very charming. For sure. B is you are born with certain gifts, right? Which he is. He uses them very well. He is very self-deprecating. अपने आप को
स्टेज पे स्टूल लगा के दीपिका के साथ होस्टिंग करता है. ही इज कॉन्फिडेंट इन हिज ओन स्किन. प्लस ही इज प्रॉबली one of the most intelligent human beings I know. His mind works so fast and so intelligently, and his wisdom, his articulation, his communication is so clear, spasht. He knows how to put it across. He has a different take on everything. He's driven, very driven. He's empathetic. He thinks of others. सेट पे आता है, एवरीबडी शाहरुख आया, बट ही लुक एट एवरीबडी, ही एक्सचेंज ग्लांसेस विद एवरीबडी. ही इज डिसाइडेड दैट वी आर मेकिंग फिल्म्स, बट वी आर ऑल्सो हियर टू हैव अ गुड टाइम. मतलब he doesn't, he's serious while working also, he jokes also while working, and then after work we must have a good time. It's an experience. That is Shahrukh. So he is a package. And some people, height, looks, hair, I don't know what it is, but you stand on stage, you fill the stage. You come on the screen, you light up the screen. I know of such handsome looking men who don't light up the screen. I know of some most beautiful, such a beautiful girl. Something's not quite right. Then there are some people, actors, on stage they are dadas. On screen they may not be. And there are some people on screen who are dadas on their performances, but somehow on stage it doesn't come across as well. It's one of those things. That's an X factor. Shahrukh has but many X factors, not one. So that's one of his key. The moment he comes, he just feels light. Absolutely, no question. And he's intelligent. He's smart, that's the word. And he has quick solutions and say, don't worry. We'll do this. Don't worry about it. हम लोग ये कल करेंगे, लेकिन we'll do it tomorrow. Don't worry. We'll fix it. He's got a way of doing things. In your filmography, सबसे बेस्ट कैरेक्टर आपको कौन सा लगता है? घोसला. Why do you, आपको क्यों पसंद है कैरेक्टर? वो कैरेक्टर जो है, मैं रहा बम्बई का पारसी. तो मैं जब कास्ट हुआ उसके लिए, मैंने मना कर दिया, मतलब ये मेरे लिए नहीं है. फिर वो जयदीप साहनी फिल्म का राइटर, मैं उस वक्त फोटोग्राफर था. मैं मिस इंडिया शूट कर रहा था, मिस इंडिया की पोर्टफोलियो शूट कर रहा था. तो बोले कितने बजे पैकअप होता हूँ? 8. खाना कब खाते हो? मतलब आई गो टू द रूम एंड हैव माई रूम सर्विस. और फिर हम बात करेंगे. तो हर रोज रात को 1 घंटा फ़ोन करता, ये कौन सी पिक्चर अच्छी लगी थी, वो फिल्म से घोसला के बारे में बात ही नहीं करता था. But it was his way of showing that he wanted me in the film. चलो एक और बार मिलते हैं. फिर हम लोग I started doing research on the character. और मैं बहुत पहले पहुंच गया लोकेशन पे. जाके मैं सेट पे बैठूंगा, मैं देखूंगा किस तरह की पिक्चर है, पिक्चर का वर्ल्ड क्या है. तो पूरी कास्ट एक ही रूम में, छोटे से वो बंगले के अंदर एक छोटी सी रूम थी, और सब पूरी कास्ट वहाँ पे ऐसे स्लीपिंग इन द आफ्टरनून. तो खेर साहब सोए थे वहाँ पे. लगे मिस्टर खेर, कौन है? मिस्टर खेर कौन? तो मेरी तरफ ऐसे देख रहे, बैकलाइट था, कागज के फूल स्टाइल. तो बोला कौन है आप? मतलब मैं बमन बोलो. तो उठे, सर देखा, उन्होंने पहचाना नहीं मुझे. सिंह क्या बात करे, बमन? बोला हाँ. आई एम इन शॉक. And he took me out in the sunlight and said, I want to tell you something. I was not very happy they were casting you. मैं खुश नहीं था. मुझे लगा था कि साला ये मिसकास्ट है. ऐसे मत सोचना कि मैं आपको you would do it. And he's probably right. He said, I'm feeling so good. And gave me confidence. And then we did what we did.
both of us. Yeah. Nice. So because of the journey of how it happened, it's your favorite character. Yeah. No, also I think he's a मजेदार character. Yeah. मजेदार character है यार. He has a confidence क्या है उस आदमी में.